Hi friends, welcome to English Study Point. Today here in this video lecture, I am going to discuss with you about a literary term that is denouement. Let me explain you this term by citing some situational examples which are related to me in front of you all. Suppose if I am reading any kind of text, whether in a form of drama or in a form of fiction, and while engaging myself in the process of reading, I am confronted with some sort of conflict at the start of reading that particular drama or fiction. Suddenly there came a point where I finished reading that particular fiction or drama. So at the end of reading that fiction or drama, I am provided with some resolution to the conflict which I confronted at the start of reading that particular drama or fiction. So this is called as denouement. Denouement means providing resolution to the conflict which we face at the start of reading any kind of fiction or drama. This is called as denouement. If I explain this term in a layman terms, so it is the ending point of any kind of drama or fiction in which readers are provided with resolution to the conflict that they confront at the start of reading that particular drama or any kind of fiction. This is called as denouement. अगर हिंदी में से एक्सप्लेन किया जाए तो denouement क्या है? अगर रीडर किसी भी वर्क को किसी भी ड्रामा या फिक्शन को रीड कर रहा है एंड स्टोरी के उसी ड्रामा की स्टोरी के बीच में उसे किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है तो फिर वो धीरे धीरे रीड करता रहता है एंड उसे क्यूरियोसिटी हो जाती है कि आगे क्या होगा. देन फिर एक स्टोरी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर स्टोरी पूरी कंप्लीट हो चुकी होती है एंड ये एक तरीके का एंडिंग पॉइंट होता है जहाँ पर रीडर को ये चीज़ पता चलती है कि यानी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन यानी स्टोरी के मिडल में जो कॉन्फ्लिक्ट था वो कैसे जाकर रिजॉल्व हुआ. उसे कॉज पता चलता है कि ये स्टोरी में स्टोरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट किस वजह से हुआ एंड साथ ही साथ उसे रेजोल्यूशन पता चलता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से जाकर रिजॉल्व हुआ. तो ये सारी चीज़ें उसे स्टोरी के एंडिंग में पता चलती है. जब वो ड्रामा की स्टोरी को एंड में जाकर रीड करने लगता है तो उसे ये पता चलता है कि जो स्टोरी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था वो इस वजह से हुआ एंड रिजॉल्व किस तरीके से हुआ. तो ये सभी चीज़ें डिनाउमेंट स्टोरी के एंडिंग पार्ट में मेंशन होती हैं. तो इट इज़ दैट पॉइंट वेयर कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट टू गेट unfold and it always occurs after the climax in a final part of a story's narrative. So denouement is the resolution of a plot that occurs after its climax. This is called as denouement. Now let me explain you about this. Also it is very essential for you to know why denouement is essential part of any kind of drama or fiction, because in denouement any kind of resolution is given to any kind of conflict that we find at the start of reading that particular drama or story. So here at this point of time readers can satiate their curiosity, they can satisfy themselves because they are filled with so much of curiosity. They have a lot many questions and all those questions are answered here in this part, that is denouncement part, which is the ending part of any kind of fiction or drama. And here also readers starts to normalize themselves because they are now at this point, when they come to this point of time, they are able to satisfy themselves because they whenever they start reading any kind of work, they have lot of questions, they bulge up with so many questions, and at this point of time they are able to satisfy their curiosity and they return back to normal state because after reading those sorts of drama which are totally filled with conflicts, so they are in a very tense situation and they have questions like how did this thing happen in this part of this play. So at this point of time they realize they come up with so many questions. Now at this point of time their each and every query that they have in at the arrival of reading any kind of story, now at this point they have are able to satisfy their all sort of query. So this is what about denouement in a brief. Now let us explain this term in a more elaborative way. So denouement is derived from a French word and it means unknotting because at this point of time, so this is the ending part. So here readers come up to know that unshared secrets, and here at this point there is rewarding of the good people and also bad people are punished here in the end. And also denouement restores orders to the narrative world of the main characters, provides some sort of resolution and a feeling of finality. It is the final outcome of the story, generally occurring after the climax of the plot. It's where all the secrets are revealed and the loose ends are tied up. So that is why denouement means unknotting, because it is where all the secrets are revealed and the loose ends are tied up. Now so इट डिनोट्स द रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन फिक्शन और ड्रामा. तो कोई भी फिक्शन या फिर अगर एक रीडर फिक्शन या फिर ड्रामा को रीड कर रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं रीड करते समय कॉन्फ्लिक्ट्स को कन्फ्रंट करता है कि उस ड्रामा के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म में. तो डिनाउमेंट एक ऐसा किसी भी ड्रामा या फिर फिक्शन का एंडिंग पॉइंट है जहाँ पर उसे कॉन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन मिलता है, यानी उसे पता चलता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से बाद में जाकर रिजॉल्व होने लगा एंड उसे कॉन्फ्लिक्ट का कॉज पता चलता है कि ड्रामा के मिडल में कॉन्फ्लिक्ट इस वजह से हो रहा था. उसे रीज़न भी पता चलता है एंड लास्ट में उसे ये भी पता चलता है कि रिजॉल्व ये कॉन्फ्लिक्ट कुछ इस तरीके से जाकर धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगा एंड बाद में किसी भी ड्रामा या फिर फिक्शन की हैप्पी एंडिंग हो पाई. सो इट इज कॉन्फ्लिक्ट अनफोल्डिंग एंड रेजोल्यूशन, यानी कॉन्फ्लिक्ट यानी कोई भी राज होते हैं तो लास्ट में आके वो राज खुलने लगते हैं. इस वे में लिखा गया है कॉन्फ्लिक्ट्स अनफोल्डिंग, एंड फिर बाद में उन कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किस तरीके से किया गया उसके बारे में भी स्टोरी की यानी ड्रामा की स्टोरी के एंडिंग में पता चलने लगता है. देन द डिनाउमेंट फॉलोज द क्लाइमेक्स, यानी डिनाउमेंट ये पार्ट
मैंने अभी आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया कि डिनाउमेंट एक तरीके का स्टोरी का एंडिंग पार्ट होता है जो कि क्लाइमेक्स के बाद देखा जाता है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है किसी भी ड्रामा की, देन हम क्लाइमेक्स फेस करते हैं, उसके बाद डिनाउमेंट की बारी आती है। डिनाउमेंट किसी भी फिक्शन या फिर ड्रामा का एंडिंग पार्ट होता है जहां पर हमें कॉन्फ्लिक्ट्स का रेजोल्यूशन के बारे में पता चलता है। सो एंड प्रोवाइड्स एन आउटकम टू द प्राइमरी प्लॉट सिचुएशन, एंड इससे हमें आउटकम पता चलता है कि ये चीज़ पता चलती है कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट का क्या आउटकम रहा, क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा, यानी लोगों ने इस तरीके के एक्शन ड्रामा के बीच में लेने की कोशिश की थी तो उसका आखिर में क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ, तो वो भी हमें एंडिंग में पता चलता है कि अगर इसने इस तरीके का स्टेप लिया होगा तो इसकी लाइफ के लिए ये चीज़ रिस्की बन गई होगी, जिसकी वजह से बाद में जाके उसे इस तरीके की चीज़ फेस करनी पड़ी। सो द डिनाउमेंट फॉलोज द क्लाइम एंड प्रोवाइड्स एन आउटकम टू द प्राइमरी प्लॉट सिचुएशन। यस, हमें पता चलता है कि अगर एक पर्टिकुलर करेक्टर ने इस टाइप का डिसीजन लिया होगा तो उसका कॉन्सिक्वेंस उसको किस तरीके से फेस करना पड़ता होगा। जैसे अगर रीडर किसी भी अगर मैं ही किसी भी फिक्शन को रीड कर रही हूँ या फिर ड्रामास को रीड कर रही हूँ तो थ्रू आउट द स्टोरी मेरे मन में टेंशन होगी कि आगे क्या होगा मेरे और धीरे धीरे मेरा सस्पेंस बढ़ता जाएगा एंड मैं ये सोचती रहूँगी इन मिस्टीरियस चीज़ों को कैसे बाद में ऑथर ने इन करेक्टर्स के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश की। तो मेरे मन में एक तरीके की टेंशन होगी कि बाद में इन लोगों के साथ कैसा होगा। तो वो जो चीज़ है उस चीज़ की क्यूरियोसिटी या फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन तब जाके मिलेगी जब मैं स्टोरी के एंड में आ जाऊँगी एंड मुझे ये पता चलेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न ये था एंड इस तरीके से उन्हें इस कॉन्फ्लिक्ट को जब उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट को कन्फ्रंट किया तो इन्हें इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट यानी कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ा होगा एंड बाद में जाके उनकी इस तरीके की हालत हो गई होगी। इन सभी का पता किसी भी स्टोरी की एंडिंग में पता चलता है। आउटकम टू द प्राइमरी प्लॉट सिचुएशन एज वेल एज एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकेंडरी प्लॉट कॉम्प्लिकेशंस, एंड साथ ही साथ हमें डिनाउमेंट के थ्रू ये भी पता चलता है कि स्टोरी के यानी बाद में स्टोरी का क्या हुआ। जैसे मैंने कभी भी किसी भी टेक्स्ट को अगर रीड किया है तो अगर मैं उस टेक्स्ट को रीड कर रही हूँ या फिर फिक्शन या फिर ड्रामा को रीड कर रही हूँ तो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट आता जा रहा है एंड मेरे मन में एक तरीके का सस्पेंस बढ़ता जा रहा है, क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है आगे क्या होने वाला है। तो उसका आंसर भी मुझे डिनाउमेंट इस पार्ट के थ्रू पता चलेगा कि आगे चलकर चीज़ें ऐसी हुई, सिचुएशंस ऐसी हो गई, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होने लगे, उसका कॉन्सिक्वेंस उस करेक्टर ने इस तरीके से फेस किया। देन डिनाउमेंट इन्वॉल्व्स अ करेक्टर्स रिकॉग्निशन ऑफ हिज और हर। डिनाउमेंट के थ्रू हमें एक चीज़ का और पता चलता है कि हम करेक्टर के बारे में उसकी साइकोलॉजी को हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि वो जो करेक्टर है वो इस तरीके के स्टेट ऑफ माइंड में रहा, उसके सर्कमस्टेंसेस कुछ इस तरीके के थे तो उसने इस टाइप के डिसीजन लेने की कोशिश की। यानी हमें करेक्टर की साइकोलॉजी के बारे में पता चलता है और हमें इस चीज़ का पता चलता है कि इस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में रहकर उस करेक्टर ने इस तरीके से बिहेव करने की कोशिश की। So, denouement involves a character's recognition of his or her state of mind or moral condition. Yes, हमें denouement के थ्रू उसकी moral condition के बारे में भी पता चलता है कि उस circumstance में रहकर उसने किस तरीके के स्टेप लिए, भले ही वो moral step हो यानी गुड स्टेप्स भी ले सकता है या फिर बैड स्टेप्स भी ले सकता है। यहाँ पे बैड स्टेप्स का मतलब है अच्छे डिसीजंस भी ले सकता है या फिर बुरे डिसीजंस भी उस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में रहकर ले सकता है। देन it is that part which we see at the ending of any kind of drama as well as fiction after resolution of any kind of conflicts the normal state returns back। तो ये सब मैंने लेक्चर के शुरुआत में बता दिया है एंड डिनाउमेंट के थ्रू एक चीज़ ये भी पॉसिबल हो पाती है कि जब रीडर्स बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरे होते हैं क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को कन्फ्रंट कर रहे होते हैं एक के बाद, जो कि ड्रामा के थ्रू जब वो रीड कर रहे होते हैं तो वो एक के बाद एक कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे होते हैं। देन फिर जब उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो सॉल्व होने लगती है डिनाउंसमेंट के थ्रू, देन फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है वो फिर से नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं क्योंकि उनको अब उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो फुलफिल हो चुकी होती है डिनाउमेंट के थ्रू। उन्हें पता चल जाता है कि कॉन्फ्लिक्ट का कारण ये था एंड कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से जाकर रिजॉल्व हुआ, तो रीडर्स अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाते हैं जबकि वो एक टाइम पर बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, उनके मन में क्यूरियोसिटी होती है। वाई प्रेजेंस ऑफ डिनाउमेंट इज नेसेसरी, क्यों डिनाउमेंट एक ड्रामा का पार्ट बन जाता है, यानी क्यों ये एंडिंग में डिनाउमेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है किसी भी फिक्शन या फिर ड्रामा के लिए। अ स्टोरी कैन नॉट हैपन विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, कि एक स्टोरी कभी भी नहीं हो पॉसिबल नहीं हो पाती, यानी कभी वो कंप्लीट नहीं हो पाती जबकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स प्रेजेंट ना हो। कॉन्फ्लिक्ट्स का उस स्टोरी में होना जरूरी है, यही कॉन्फ्लिक्ट्स एक स्टोरी को कंप्लीट बनाते हैं एंड कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी रिजॉल्व विदाउट डिनाउमेंट, एंड ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकते डिनाउमेंट के थ्रू, क्योंकि डिनाउमेंट के थ्रू हमें हर तरीके के कॉन्फ्लिक्ट का समाधान मिलता है, रेजोल्यूशन मिलता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या था एंड किस तरीके से जाके बाद में जाकर ये रिजॉल्व होने लगा। देन तो डिनाउमेंट किसी भी ड्रामा या फिर फिक्शन का ऐसा एंडिंग पॉइंट है जहाँ पर हर तरीके के सीक्रेट्स को, यानी स्टोरी जब हम रीड करते हैं ड्रामा की फॉर्म में जब हम किसी भी स्टोरी को रीड करते हैं तो बहुत ज़्यादा सीक्रेट से भरी होती है, तो वही एक ऐसा पॉइंट आ जाता है, ऐसा एंडिंग पॉइंट आ जाता है जहाँ पर हर तरीके के सीक्रेट्स को रिवील कर दिया जाता है कि ये इस तरीके का सीक्रेट था जो कि हमें स्टोरी की स्टार्टिंग में मिला। एंड साथ ही साथ ऑल द लूज एंड्स आर टाइड अप का यहाँ पर ये मतलब है क्योंकि यहाँ पर हर तरीके के अनशेयर्ड सीक्रेट का रिविलेशन हो रहा है एंड साथ ही साथ एंडिंग में जितने भी बैड
या फिर इविल डूअर्स थे उन्हें पनिश किया जा रहा है, एंड जितने भी अच्छे लोग थे उन्हें रिवॉर्ड किया जा रहा है। तो ये एक तरीके से लूज एंड्स भी थे। जितने भी लूज एंड्स होते हैं यानी जो कि कॉन्फ्लिक्ट से भरे होते हैं उन्हें टाइड अप कर दिया जाता है, क्योंकि लास्ट में हमें उस चीज़ का रेजोल्यूशन मिल जाता है। देन अ वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ डिनाउमेंट इज द लास्ट सीन ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट। ये वर्क है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, इन विच कपल्स आर मैरिड, जिसमें कपल्स की शादी हो जाती है, एंड इविल डूअर्स जितने भी होते हैं वो बाद में पछता रहे होते हैं, रिपेंट कर रहे होते हैं अपने डिसीजंस के लिए, अपने बैड डिसीजंस के लिए जो उन्होंने अपनी लाइफ में लिए होते हैं। द आइडेंटिटीज ऑफ टू डिस्गाइज करेक्टर्स आर रिवील्ड। सो शेक्सपियर के वर्क्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे करेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी को डिस्गाइज करके रखते हैं, एंड बाद में स्टोरी के एंडिंग में जाकर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर उनके डिस्गाइज्ड करेक्टर्स को भी रिवील कर दिया जाता है, एंड जो अच्छा रूलर होता है, जो ऑनेस्ट रूलर होता है, उसे उसकी पावर वापस मिल जाती है रिस्टोरेशन की फॉर्म में। देन हियर विद दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर ends here. Hope this video lecture will help you in your UGC NET English literature exams. Thank you.